Hello students, today we will continue our chapter number 7 named simple linear equation. In our previous video we have solved some questions of exercise 7.1. Today we will solve the other questions of 7.1. Okay, see, today we will solve the question number 5. What is given in question number 5? Question number 5 is determine by substitution if first statement is बच्चे 7 is the root of x plus 7 is equals to 14. बेटा आपको फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करना है बाय सब्स्टिट्यूशन कि क्या 7 सच में इस इक्वेशन का रूट है. आपको चेक करना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है. बच्चे अगर 7 इस इक्वेशन का रूट है तो बच्चे जो 7 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. और बेटा रूट क्या होता है? रूट क्या होता है? जो आपका वेरिएबल होता है उसकी वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. इट मीन्स डैट 7 इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्स. अगर 7 इसका रूट है तो इसका मतलब क्या है कि ये वेरिएबल जो x है इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 7 है. तो बच्चे पुट x इज इक्वल्स टू 7 इन गिवन इक्वेशन. If it satisfies then it is the root. If it does not satisfy the equation that means that this statement is false. See बच्चे put x is equals to 7 in this equation. What you get? 7 plus 7 is equals to 14. You get 14 is equals to 14. That is your left hand side is equals to right hand side. It means that the value of x is equals to 7 is satisfying the equation. So 7 is the root of this equation. So you can say this statement is true. This statement is true. Now see the second part of the same question. Five is the B part is 5 is the root of 2x plus 5 is equals to 20. आपको चेक करना है कि 5 इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है. ठीक है बेटा, कैसे चेक करोगे? बाय सब्स्टिट्यूशन. रूट होता है वो क्या होता है बच्चे? वेरिएबल की वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. रूट एंड सॉल्यूशन बोथ आर द सेम थिंग. आप सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलिए या फिर आप रूट ऑफ इक्वेशन बोलिए, बोथ आर द सेम थिंग. ठीक है बेटा, अगर 5 आपका रूट है इस इक्वेशन का तो ये x इज इक्वल्स टू 5 जब आप पुट करोगे तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा. पुट x इज इक्वल्स टू 5 then what you get? 2 into 5 plus 5 is equals to 20. बेटा क्या मिलता है? 2 into 5 gives you 10. 10 plus 5 is equals to 20. That is 15 is equals to 20. What you get from here? That 15 is not equals to 20. That is left hand side is not equals to right hand side. As 15 20 के इक्वल नहीं हो सकता तो आपको क्या मिला बेटा? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. तो जो आपकी गिवन स्टेटमेंट है इट इज टोटली रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. इट मीन्स दैट 5 इज नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. सो यू कैन से एज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. So x is equals to 5 is not the root of 2x plus 5 is equals to 20. जैसे बेटा आपने 5 पुट किया, आपने देखा कि 15 इज इक्वल्स टू 20 बोला है. डेट इज नॉट पॉसिबल. इट मीन्स डेट लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके है? राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. अगर इक्वल नहीं आ रही है इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है. अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो 5 है वो आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है. योर स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओके, now see third part of the same question. C part is 9 is the root of x by 3 is equals to 3. We will check it by substituting the value of x. Put x is equals to 9. What you get? 9 by 3 is equals to 3.
3 is equals to 3, 3 1 3, 3 3 is 9. So what you get, 3 is equals to 3, that is left hand side is equals to right hand side. So the given statement is true and you can say 9 is the root of the given equation. Understand? As LHS is equals to RHS, so given statement is true. Is true, that is 9 is the root of 9 is the root of x by 3 is equals to 3. Okay, now see the last part of this question. Minus 4 is the root of 3x plus 4 is equals to 16. 3x plus 4 is equals to 16. If this is the root of this equation, then it must satisfy the given equation. So बच्चे check it by putting the value of x is equals to minus 4. Okay, what you get, 3 into minus 4 plus 4 is equals to 16. What you get, 3 into minus 4 gives you minus 12 plus 4 is equals to 16. But what you get, minus 8 is equals to 16. That is not possible. Minus 8 can't be equal to 16. So you can say left hand side is not equals to right hand side. जो लेफ्ट साइड है वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड यू कैन से -4 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन. सो एज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, this implies -4 is not the root of given equation, that is 3x plus 4 is equals to 16. Hope this question is clear to you. Practice it at home. Now we will solve the last question of this exercise. After that our 7.1 exercise is complete. See बच्चे, solve the following equation and check your answer. Question number 6 is what? Solve the following equation and check your answer. See बच्चे, first we will solve part A, that is 7x minus 3x plus 8 is equals to x plus 2. बच्चे see here, you have to solve the given equation. सोल्व, अगर आपको बोले कि इक्वेशन को सोल्व करना है, मतलब कि आपको उस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब बेटा ये है कि जो वेरिएबल x आपको गिवन है ना, आपको इसकी वैल्यू निकाल के आनी है, वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. और हमें पता है वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाता है. ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सी बच्चे, व्हाट यू हैव 7x माइनस 3x प्लस 8 इज इक्वल्स टू x प्लस 2. यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तो व्हाट यू गेट, 7x माइनस 3x यू गेट 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू x प्लस 2. बेटा वन मोर थिंग आई विल टेल यू, इवन आपने ये 6th क्लास में भी किया है. जब आप क्या करते हो, जब आपके पास इक्वेशन वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स में गिवन होती है और आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, तो आप क्या करते हो, वन साइड आप वेरिएबल को रखते हो, दूसरी साइड आपके सारे कॉन्स्टेंट होते हैं. ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पे 4x आपका एक वेरिएबल है, 8 कॉन्स्टेंट है, x वेरिएबल है और आपका 2 कांस्टेंट है. तो आप क्या करोगे, एक साइड आप कांस्टेंट को रखोगे और दूसरे साइड आप वेरिएबल्स को. सी बच्चे, यहाँ आपका 4x है, जब इस वेरिएबल x को राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा.
इस वेरिएबल को जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अभी ये किसका है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, जिसके आगे कोई साइन नहीं तो किसका होता है, प्लस का। जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो कैसे आएगा, ये माइनस का बन के आएगा। क्या बन के आएगा, माइनस का। ठीक है बेटा, ये 2 इधर है बेटा, ये जो प्लस का 8 है लेफ्ट से राइट में जाएगा तो किसका बन के जाएगा, माइनस का 8। अगर ये माइनस का 8 होता तो प्लस का बन के जाता, मतलब प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन आपके डिवीजन में कन्वर्ट हो जाती है और डिवीजन आपकी मल्टीप्लीकेशन में। अंडरस्टैंड बच्चे? सो बच्चे व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, 4x माइनस एक्स गिव्स यू 3x एंड हियर 2 माइनस 8 यू गेट -6। एक्स की वैल्यू यू वांट टू कैलकुलेट, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो मल्टीप्लीकेशन में नंबर होता है वो जब आपकी साइड चेंज करता है, मतलब कि दूसरी साइड जाता है तो क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन में आपका कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे 3x है, 3 मल्टीप्लीकेशन में है, ये लेफ्ट साइड में है, अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो कैसे जाएगा, ये डिवीजन में जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -6/3। इट मीन्स डैट x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -2। x इज इक्वल्स टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x की वैल्यू -2 क्या बनेगी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये तो हम सॉल्यूशन निकाल के आए हैं, हमने क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ तक सोल्व किया है। अब उसके बाद क्या कहता है, चेक योर आंसर, कि जो आंसर आपको मिला है, जो सॉल्यूशन आपको मिला है, क्या सच में वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर वो उसका सॉल्यूशन है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बेटा, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -2 इन द गिवन इक्वेशन। फॉर चेकिंग आप क्या करोगे, जब आप चेक करोगे तो आप क्या लिखोगे, टू चेक x इज इक्वल्स टू -2 आपका है या नहीं, आपको चेक करना है। कैसे पता लगेगा, अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। टू चेक x इज इक्वल्स टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7x - 3x + 8 इज इक्वल्स टू x + 2। we have to check that it is the solution of this equation. So what will we do, we will put the value of x is equals to -2. For this what we will do, we will put the value of x is equals to 2 in given equation. Put x is equals to -2 in given equation. तो बेटा जब पुट करेंगे यहाँ पे आप पुट कीजिए 7 into -2 you will do, -3 into -2 you will write here, plus 8 is equals to -2 plus 2. What you get बच्चे, 7 into 2 gives you 14. ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है। जब प्लस माइनस को मल्टीप्लिकेशन आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, माइनस। जब भी डिफरेंट साइंस की मल्टीप्लिकेशन होती है डेट टाइम व्हाट यू गेट, माइनस साइन। ओके, हियर सी बच्चे 3 into 2 gives you 6, 3 into 2 gives you 6। हेयर माइनस इंटू माइनस गिव्स यू प्लस, क्योंकि जब सेम साइन की मल्टीप्लिकेशन होती है ना तो आपको प्लस मिलता है, डिफरेंट साइन मल्टीप्लिकेशन के टाइम आपको माइनस देते हैं। अंडरस्टैंड बेटा, 7 2 = 14, किसका, माइनस का। 3 into 2 6, माइनस माइनस प्लस, तो व्हाट यू गेट, +6 + 8 इज इक्वल्स टू -2 + 2 गिव्स यू 0। नाउ बच्चे सी हेयर, -14 + 6 + 8 is +14 is equals to 0, that is 0 is equals to 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हम चेक कर चुके हैं। इट मीन्स डैट कि x इज इक्वल्स टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आपको क्या करना है, पहले तो आपको इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपको जो वैल्यू मिलती है उसको इक्वेशन में पुट करके चेक करना है कि जो आपने सॉल्यूशन निकाला है वो आपका वैल्यू जो निकली है वो ठीक है या नहीं। अगर बाय चांस आप कोई मिस्टेक कर देते हैं प्लस माइनस में और आपकी यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और आ जाती और आप यहाँ पुट करते तो वो सेटिस्फाई नहीं करता, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती। तो बेटा यहाँ से आपका क्रॉस चेक भी हो रहा है कि जो आपने क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत। ठीक है बेटा, तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, जो भी सॉल्यूशन आपको मिलता है वो हमेशा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो यानी आपने यहाँ इस पार्ट में कुछ मिस्टेक किया है, इस पार्ट में आपसे कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। अंडरस्टैंड बेटा, तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आफ्टर दिस वी विल सोल्व द अदर क्वेश्चन ऑफ द सेम क्वेश्चन। सी बेटा, we will solve the last part of this question, D part we will do. B and C you have to try yourself. If you are not able to solve question part B and C, then you can ask me on WhatsApp. Okay, x minus 5 by 7
minus 8 is given to you and this is equals to 2x plus 4 by में 5. Understand बेटा? See, here again you have to solve the equation. Equation solve करने का मतलब क्या है कि आपको इक्वेशन जो सोल्व करने का मतलब ये है कि आपको इस वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है. इट मीन्स डैट यू वांट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो आपको बेटा x की वैल्यू निकालनी है. फर्स्टली सिंप्लीफाई दिस. बटे यहाँ पे आपका ये जो है इसको क्या करें आप एलसीएम ले लीजिए. 7 एज एलसीएम आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड. 7 1 जा 7 1 यू गेट. 1 के साथ आपको क्या करना अपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई. 1 into this what you get as it is x minus 5 you get. Okay, now put the sign of minus here. What is written here in denominator? 1 is there. You have to divide this with this 1. तो 1 when divide 7 you get 7. जब भी आप 1 से इस 7 को डिवाइड करोगे जो कि आपका कॉमन डिनोमिनेटर बना है तो आप क्या आपको मिलता है 7. 7 को क्या करना है फिर आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है. when 7 into 8 you will do you get 56. आपको क्या मिलता है 56. now right here it is 2x plus 4 by में 5. now in left hand side what you get? लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलता है बेटा x. ये भी माइनस ये भी माइनस. सेम साइन होती एडिशन है लेकिन साइन किसका आता है जो बड़ा है. बड़ा कौन है 56. 56 का साइन माइनस का. नाउ 5 प्लस 56 व्हाट यू गेट? इट इज 61. आपको क्या मिल जाता है 61. नाउ x माइनस 61 बाई 7 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 बाई में 5. ठीक है बेटा, इतना आप कर चुके हैं. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये जो डिनोमिनेटर है इसको ये डिवीज़न ये क्या कर रहा है x माइनस 61 को 7 डिवाइड ही तो कर रहा है. सेम यहाँ पे 2x प्लस 4 को 5 डिवाइड कर रहा है. तो हमें क्या करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है. ठीक है बेटा, सी यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 5 इंटू एक्स माइनस 61. 5 इंटू एक्स माइनस 61 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2x प्लस 4. बच्चे मल्टीप्लाई इट वट यू गेट 5x. You get 5x minus 5 1 जा 5, 5 6 जा 30. That is 305 you get. Okay, and this is equals to what? 7 2 जा 14. 14x plus 7 4 जा 28. Now why we are solving this question? To find the solution of this equation ना. और solution क्या होता है बेटा? The value of variable which satisfy the equation. So बच्चे you want to find out the value of x. So keep all the variables one side and other constant. And constant other side. See what you get 5x here 14x sign it has plus sign. Now when it change the side what it becomes? It becomes 14 minus 14x. And now बच्चे here what you get 28. ये माइनस का 305 राइट हैंड साइड जाएगा, लेफ्ट से राइट जा रहा है, माइनस का साइन है तो किस में कन्वर्ट होके जाएगा बेटा ये प्लस में. 305 you get. Okay, now 5x माइनस 14x वट यू गेट माइनस 9x. आपको क्या मिल जाता है माइनस का 9x. एंड ये बच्चे आपका क्या बन जाएगा 8 प्लस 5 गिव्स यू 13. 1 एज ए कैर यू पुट हेयर 1 प्लस 0 1 1 प्लस 2 3 एंड हेयर यू हैव 3. It means that minus 9x is equals to 333. You want to calculate, you want to find out the value of x. So what will you do? You will write x is equals to 333 by माइनस का 9. क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था -9 तो यहाँ जाके क्या बनेगा बेटा ये डिवाइड में चला जाएगा आपका. नाउ सी बच्चे यू वांट टू डिवाइड इट. नाउ सी बच्चे इफ़ यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट इट you can simply divide it like this. Okay, see 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36. तो बड़ा हो जाएगा बेटा तो 9 3 27. जब 27 को आप 33 में से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 6. एंड यू नो 9 7 जा 63, 6 और 3 63 बन जाएगा. 9 7 जा 63 तो बेटा ये 37 आ गया. लेकिन साइन माइनस का भी था साथ में. किसका साइन था माइनस का. तो बेटा जो आपका आंसर आया वो क्या आया है x इज इक्वल्स टू माइनस का 37. x इज इक्वल्स टू माइनस का 37. अगर आप ऐसे बच्चे डायरेक्टली नहीं काट पा रहे हैं ना तो आप क्या करो इसको पहले 3 से कट आउट कीजिए, फिर से अगेन आप क्या करोगे फिर से 3 से कट करोगे. ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 37. x इज इक्वल्स टू माइनस 37 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन.
लेकिन हमें क्या करना है, चेक करना है कि जो हमने अपना आंसर निकाला है वो हमारा सही आया है, हमने कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है। अगर आपकी ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है तो आप क्या कहोगे कि हाँ मेरा जो मैंने जो काम किया है वो मेरा सही है। अगर वो गलत आता है तो इसका मतलब आपने कहीं प्लस माइनस की या कोई भी मिस्टेक की है। ठीक है, आपको अब चेक करना है। चेक कैसे करोगे, x इक्वल्स टू -37 आप पुट करोगे किसमें, इस इक्वेशन में। इसमें लिखना कैसे बेटा, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने लिखा था सेम एज इट इज़, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न आपको फॉलो करना है, जो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट था उस वाला। ठीक है बेटा, x इक्वल्स टू -37 यू हैव टू पुट, x की जगह क्या पुट करना है, -37 -5 बाई में 7 -8 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 इंटू माइनस का 37 प्लस 4 बाई में 5, ये है बेटा। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। कैसे करेंगे इसको, पहले अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो। इसको सोल्व कीजिए पहले। -5 + 7 गिव्स यू 12, 1 कैरी एज हियर, इट इज़ 42। 37 + 5 गिव्स यू 42, -42/7 यू गेट, -8 इज इक्वल्स टू 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 + 1 7, -74 + 4 बाई में 5 यू गेट। नाउ बच्चे सी इट हियर, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, तो what you get, -6 -8 is equals to, here you can see -74 + 4, it means that you get 70/5. what you get बच्चे, 6 + 8 gives you 14 एंड साइन किसका, जो बड़ा है, बड़ा कौन था 8, यानी कि -14 यू गेट। एंड हेयर यू कैन सी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 लेफ्ट, 5 4 जा 20। तो बेटा देखिए यहाँ माइनस साइन था ना, माइनस, तो बेटा -14 इज इक्वल्स टू -14, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो यू कैन से सो x इज इक्वल्स टू -37 इज द रिक्वायर्ड solution of given equation. Hope all these questions are clear to you. If you have any doubt, please WhatsApp me. I will solve it for you. Thank you, students.